Yes. हेलो यश शिवम सर, वॉइस क्लियर है मेरी आपको? हाँ, आपकी वॉइस मुझे क्लियर आ रही है। ठीक है शिवम सर, बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 12 PM का टाइम है सेशन स्टार्ट का, तो इस समय सारी चीजें चेक कर ली हैं, शायद सब ओके है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। थोड़ा मुझे एक मिनट टाइम दीजिए, मैं हेडफोन में कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ले लीजिए टाइम अभी। मैं थोड़ा सा हेडफोन कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बस। ठीक है सर, ठीक है, ले ओके। लीजिए। हेलो, हेलो। हेलो यस शिवम सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना अब? हाँ सर, आवाज है क्लियर। सर ठीक कैन वी ठीक। प्रोसीड, स्टार्ट करें? हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है रामशंकर सर, हम स्टार्ट करते हैं सेशन। रामशंकर सर, डायरेक्टर सर एंड आईआईसी प्रेसिडेंट सर अवेलेबल हैं यहाँ पर, स्टार्ट करें हम? निगम सर एंड डायरेक्टर सर, स्टार्ट करें सेशन? शिवम सर, स्टार्ट करते हैं हम सेशन, ठीक है? ठीक, ओके, नो इशू। Good afternoon, students and faculty, and Deputy Director Sir and IEC President. Today, Institution Innovation Council, IMT College of Management, organizing half-day online session. We will discuss on the topic how to plan for startup and legal and ethical steps with our guest and speaker, Mr. Shivam Rai, Divisional Manager, Bandhan Bank. So start our session. First, I will like to invite our Director Sir, Professor Mr. Abhinno Bakshi Bhatnagar, Deputy Director, IMT College of Management, to welcome our guest and say a few words about this session. So I welcome our Deputy Director Sir. Please say a few words. After proceed our session. Thank you, Mr. Tushar Gupta. It's my privilege to, first of all, I welcome Mr. Shivam Rai, Divisional Manager of Bandhan Bank. Welcome, Shivam sir. I also welcome all our respected deans, Dr. Nigam, who is the Dean of BGMC. I also welcome all the head of the departments, all the faculty members, and my dear students.
As a trend that we are regularly interacting with the students and by calling our resource persons for the various. So today it's a very interesting topic is that how to plan for a startup and the legal and ethical steps. So my dear, as you are the young bloods, you know that today's times is for the entrepreneurs and the startups time. So no doubt about that. There is no doubt. Mr. Tushar, I am audible. Yes, yes, sir. Your voice is audible. Okay. Please carry on. Okay. So this is a privilege for us that he is from the Bandhan Bank, and he will let you know that for starting any business, Mr. Tushar, please mute the phones of others. Okay. Yeah, thank you. So what is the theme of the today's session is that how to plan for startup and what are the legal and ethical steps. So I really think that Mr. Shivam will explain you nicely, and we have a very good uh, diversifications of students of BBA, BCom, BGMC. So, sir, definitely all diversified areas are there. So, my request to you that please give some very good ideas how to start, how to legalize the business, how to start, and the startup is the nowadays a buzzword, as our Prime Minister is also talking about Atmanirbhar Bharat. So, this is going to be a very important for our students that instead of getting the job, they should try to give the jobs. So when they become the entrepreneurs, definitely they are giving jobs to large number of peoples. So that is a fantastic. So thank you very much, Mr. Tushar, and I hope this event is going to be a wonderful. Thank you very much. Okay. Thank you, Deputy Director, sir. Now I request to Mr. Shivam Roy. Please, sir, you are most welcome. Please discuss about this topic, how to plan for startup and legal and ethical steps, and give some guidance to our students that how to start their setup. Welcome, Mr. Sir. Please say a few words about it. Very thank you so much for inviting me as a speaker. It is my privilege to and honor for me that I am here. I'm also a student of IMT College of Management, batch of 2011 to 14 BBA. This is actually honor for me. As a part of IMT alumni, as a part of IMT, रियली मैं बोलूं तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है कि मैं अपने कॉलेज के साथ 7 साल के बाद में अगेन मैं जुड़ रहा हूं एज ए स्पीकर और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी माय डियर फैकल्टीज टुडे वी आर गोइंग टू discuss about the how to plan for startup and its legal and ethical aspects. See, in today's scenarios, in today's corporate scenario, and as per our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, for encouraging आत्मनिर्भर भारत एंड फॉर दी स्टार्टअप। जब हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप्स की, आत्मनिर्भर भारत की, तो सबके दिमाग में एक ही चीज आता है कि कुछ हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्ट ओन बिजनेस, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग इनोवेटिव, डू समथिंग बेटर देन अदर्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे अलग होना चाहिए, सबसे डिफरेंट होना चाहिए, बाकी चीजें दुनिया से अलग होनी चाहिए और हम कुछ नया आइडिया लेके आते हैं,
एक बिजनेस स्टार्ट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज के टाइम में एवरीवन हैज टू स्टार्ट अ बिजनेस, एवरीवन वांट टू स्टार्ट बिजनेस। हर लेवल पे हर लोग अपने अपने तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ ये बिजनेस है, ये ग्राउंड से स्टार्ट है और हमने इसको देखा है कैसे ग्रो करता है और कैसे ग्रो कर रहा है। लास्ट 7-8 सालों में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स की, जब हम लोग कॉलेज में थे उस टाइम पे स्टार्टअप की बहुत सारी बातें होती थी, स्टार्टअप के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता था। इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हम लोग के कॉलेजेस में और बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो साथ के कलीग्स थे, ये लोग नए नए आइडिया लेके आते थे और उन आइडियाज पे काम भी हम लोग करते थे। पहले मैं एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक नए आइडिया को लेके आना, एक नई चीजों को लेके आना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जब तक इनोवेशन नहीं होगा, जब तक नई चीजें आएंगी नहीं, तब तक ग्रोथ नहीं होगी। और जब ग्रोथ होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग के साथ जुड़ते चले जाएंगे। एक आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, एक आदमी एक नया इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, जैसे हमारे कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने कॉलेज टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव चीज लेके आते हैं। जब हम लोग बीबीए में थे तो उस समय हमारे जो बीटेक के लोग थे, हमारे साथ के मैकेनिकल के लोग थे, एक नई नई चीजें वो लोग इनोवेट करते थे, नई नई चीजें बनाते थे, अपने ही आप बनाते थे। उस टाइम ड्रोन बहुत कम सुना जाता था, ड्रोन क्या होता है, लेकिन वो ड्रोन इनोवेट करते थे। हमारे आईएमटी की बात कर रहा हूँ मैं, आईएमटी के जो हमारे स्टूडेंट थे, हमारे जो साथ के लोग थे, वो लोग एक नई चीज लेके आते थे, एक नया आइडिया लेके आते थे, उसके पीछे हमारा कॉलेज बहुत सपोर्ट करता था। और आज के टाइम में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट में अगर आप कुछ नया लेके आते हैं, उसको हाथों हाथ लिया जाता है, हाथों हाथ उसको बात लोग करते हैं, उसको बहुत कॉपरेशन मिलता है, एवरीवन इज कोऑपरेटिंग फॉर्स। और उसके साथ साथ मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूं, बैंकिंग इंडस्ट्री भी आपको सपोर्ट करती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना लेके आए थे, मुद्रा योजना में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जो नए आइडियाज लेके आए थे और उस आइडिया के साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते गए जो आज के टाइम में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार कर दिया उन लोगों ने। व्हाट्सएप क्या था? एक स्टार्टअप था, एक छोटा सा चीज था। अमेजोन क्या था? एक छोटा स्टार्टअप था। पेटीएम, ये सारे। मैं उस टाइम पे एक जुगनू ऐप यूज करता था अपने फ्लैट से कॉलेज जाने के लिए, वो एक क्या था, स्टार्टअप था, वो चंडीगढ़ का स्टार्टअप था। ये सारी चीजें बहुत ही, ओला, उबर, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए जो आज बहुत सक्सेस कर रहे हैं। लेकिन उस सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत। और मॉर्निंग सर। मैं एक चीज आप लोग को बताऊंगा, हेलो, आई एम ऑडिबल? Audible, yes. Sir, voice is audible. तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिजनेस एक नया आइडिया आना चाहिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए। Mute yourself. Sir, please mute yourself. Unmute, sir. Please unmute yourself. Shivam ji, are you listening? Shivam ji, are you listening me? Sir. We are not getting you, Shivam ji. Please unmute yourself. Shivam ji, you can unmute yourself. Please unmute. सर माइक पे डाल दे, माइक पे एक डंडी पड़ी हुई है उसको हटा दे। तुषार जी आप भी। नहीं, तुषार जी नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। शिवम जी आवाज आ रही है आपको?
शिवम सर आप माइक आप म्यूट करिए, अनम्यूट करिए शिवम सर आप माइक। मैं वो शिवम सर माइक अनम्यूट करिए। शिवम सर, शिवम सर माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर एक बार टिक करिए, माइक अनम्यूट हो जाएगा टॉप कॉर्नर पर। शिवम सर, शिवम सर टॉप कॉर्नर पर माइक के अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, माइक पर क्लिक करिए शिवम सर, माइक अनम्यूट हो जाएगा। आपका माइक इस समय आपका माइक म्यूट है शिवम सर, इसे अनम्यूट करिए। आपके स्क्रीन पे है वो जो माइक का ऑप्शन। कौन से पे लिंक है? अभी आ रही है आपकी आवाज? ठीक, ओके। हेलो हेलो, हेलो। शिवम सर बात चल रही थी कि आप बोल रहे थे कि आपके टाइम पे काफी स्टार्टअप स्टार्ट हुए, तो वहां से ही स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बात करता हूँ 2011-12, जब हम लोग अभी कॉलेज में एंटर किए थे। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे सामने आए, बहुत सारे आए स्टार्टअप्स, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आए। काफी लोगों ने इस पे काम किया और उन आइडियाज को, उन इनोवेटिव चीजों को लोगों ने हाथों हाथ लिया उस टाइम पे। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं जो अभी हम हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे साथ जुड़ गए, डे टू डे लाइफ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम डेली उनका यूज करते हैं या किसी ना किसी तरीके से हमारे लाइफ के साथ वो एसोसिएटेड है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ एक दो ऐसे एप्स, बहुत सारे ऐसे उस टाइम पे एप्स आए, मोबाइल फोन से एप्स आए। आप पेटीएम की बात कर लीजिए, फोन पे की बात कर लीजिए, अमेजन की बात कर लीजिए आप, या जी सर। शिवम सर फिर से आपको करना पड़ेगा जो आपने उसमें किया था। तुषार सर आप भी। तुषार सर माइक ऑफ है आपका। सर कोई किसी ने सर को लॉक कर दिया है, आपने मीटिंग क्रिएट करी है, आप देखिए आपके एंड पे ऑप्शन आएगा। सर को लॉक कर दिया, सर नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए आपके एंड पे ऑप्शन है। सर गेस्ट 2 से किया था या गेस्ट 1 से?
शिवम सर गेस्ट 2 से लॉगिन कराया आपने गेस्ट 1 से लिंक से? सर लिंक से लॉगिन नहीं करना था, गेस्ट 1 या गेस्ट 2 से करना था सर। गेस्ट लिंक से लॉगिन कराया है। किसी गेस्ट 1 से ना? ओके ठीक है, मैं एक मिनट सर लिंक से लॉगिन कराया। फिर तो यहाँ बदलना पड़ेगा। नहीं है कहाँ गेस्ट कहाँ? वो गेस्ट से नहीं, डायरेक्ट वो ऑर्गेनाइजर में हो। नहीं वो गेस्ट से नहीं किया। देखिए स्टूडेंट्स, तब तक शिवम सर आ रहे हैं तो हम टॉपिक पर ही डिस्कस करते हैं। जो सर अभी बता रहे थे कि सर के टाइम पे काफी ज्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हुए, जैसे कि अमेजन स्टार्ट हुआ, फोन पे स्टार्ट हुआ। आप कर पा रहे हैं शिवम सर आप कर पा रहे होंगे। हाँ शिवम सर कर पा रहे हैं। शिवम, हाँ शिवम सर कैरी ऑन करते हैं बात। हाँ, तो हम लोग बातें कर रहे थे ना स्टार्टअप्स की जो हमारे टाइम पे आए। तो मैं अभी बात बता रहा था आप लोग को, मैं जो यूज किया, मैंने बहुत ज्यादा यूज किया अपने कॉलेज टाइम पे, जो मेरे लिए बहुत कंफर्ट था। एक जुगनू ऐप करके था, और ये ऑटो रिक्शा के लिए हुआ करता था उस टाइम पे। तो उसको मैं यूज करता था रूम से और कॉलेज जाने के लिए। वो जहां मुझे नॉर्मली 50 रुपए लगते थे, वहां मैं 20 रुपए में आराम से, 30 रुपए में आराम से मैं अपने कॉलेज पहुंच जाया करता था। तो इस टाइप की चीजें वो आई, पता नहीं मुझे कि वो अभी चल रहा है नहीं चल रहा है। उस पर मैं कॉलेज टाइम में एक केस स्टडी भी किया था उस स्टार्टअप्स के ऊपर। तो आप लोग देखे होंगे और आप इस चीज को फील भी करते हैं कि नए आइडियाज जो आते हैं, नए मार्केट में जो चीजें आप लेके आते हैं, उसको लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं। और ये जब होता है जब आपका प्रोडक्ट यूनिक हो, आपका प्रोडक्ट लोगों के समझ में आ जाए कि इसकी यूज क्या है। आइडियाज बहुत आते हैं, लेकिन कुछ ही आइडियाज ऐसे होते हैं, कुछ ही ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो सस्टेन करते हैं मार्केट में। आज के टाइम में सस्टेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग, एनी स्टार्टअप यू शुड हैव इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव आइडिया, डिफरेंट आइडिया, बेटर आइडिया फ्रॉम अदर्स। मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, उसमें हम कुछ नया कर लेके आते हैं। इस कोविड के टाइम पे मैं अगर बात करूं, इस कोविड के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे ऑलमोस्ट 1 ईयर, जो मार्च से लेके हमारा जनवरी दिसंबर जनवरी तक हमारा जो पूरा पीरियड था, और अभी भी कंटिन्यू है वो, ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे बहुत आगे निकल गए, लेकिन हाँ फिर भी एक गनीमत है। इस टाइम पे बहुत ऐसी चीजें निकल के आई जिसको हम लोगों ने बोला आपदा में अवसर। आपदा में अवसर को बनाना, ये आपदा था, ऐसा था। उस टाइम पे बहुत सारे लोग आगे आए। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं, हमने विश्वास किया था कि भारत में, अपने इंडिया में एक वैक्सीन बन के आएगी, एक वैक्सीन हम लोग लेके आ जाएंगे जो हम अदर कंट्रीज को कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने जो नेशन से सार्क कंट्रीज है उनको हम देंगे। ये बहुत बड़ा आइडिया है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिम्मत की जरूरत है। और आज के टाइम में, जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज के टाइम में 20 से 25 ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जो वैक्सीन के ऊपर काम कर रही हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, आपदा को अवसर में बदला। और हम किधर मूव कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलूंगा, आप अपना आइडिया लेके आइए, एक इनोवेटिव आइडिया लेके आइए और मार्केट में उसको एक्सप्लोर करिए। ऐसा नहीं है कि उसको आप अपने दिमाग में रख लिए, हाँ मेरे पास ये चीज है, मुझे ये बनाना है, ये चीज मुझे बनाना है, मैंने ये सोच लिया है, लेकिन मैं उसे किसी से शेयर नहीं करूंगा, मैं उसे आगे लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है। लेट्स डू, आप करिए, उसको एक्सप्लोर करिए, लोग को सामने लेके आइए। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, कोई चीज आपको समझेगा नहीं। मैं समझ रहा हूं आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि मैं एक स्टूडेंट हूं
मैं कैसे अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं कैसे अपना बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर पाऊँ। अरे इसमें तो करोड़ों लगते हैं, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, बहुत सारी लीगल परेशानियां आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। उन सबको पार करते हुए हमें अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। एक हम लोग मार्केटिंग में एक टर्म पढ़ते थे और आज भी हम लोग यूज करते हैं, और ये बहुत ही नोन टर्म है, जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है, उसको हमको लेके आना होगा। अगर आपके पास आइडिया है, उसको शेयर कीजिए, उसको सामने लेके आइए, वर्कआउट कीजिए उसके ऊपर, तभी उस बिजनेस को आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। आपका स्टार्टअप है, आप आगे लेके आइए उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आपके कॉलेजेस जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आपके कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, और मैंने ये फील किया है IIMT। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, रियली मैं आपके सामने आज जो बोल रहा हूँ, वो IIMT की देन है, वो IIMT की देन है। मेरे बहुत सारी फैकल्टी, जो पुरानी फैकल्टी थी, जो हम लोग के साथ थे, वो लोग जानते हैं एक मैनेजमेंट कॉलेज आपको निखारता है, आपको आगे बढ़ाता है। मैं जब आया था, मैं एक 12th पास आउट लड़का था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ग्रेटर नोएडा ये बड़ी दुनिया क्या होती है, बट मैं आया, मैं यहाँ ज्वाइन किया, IIMT ज्वाइन किया, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, मुझे सपोर्ट मिला। वैसे ही आप अपने आइडियाज लेके आइए, अपनी फैकल्टीज के साथ शेयर करिए। आपका इंक्यूबेशन सेंटर है, आप उसको मिलिए, वहां की फैकल्टी से आपका आइडियाज पसंद आएगा, आप उसके ऊपर पूरा प्रिपरेशन करके किसी के सामने प्रेजेंट करिए, उसके ऊपर पूरी केस स्टडी करिए, उससे रिलेटेड कोई अगर आपको रिसर्च पेपर मिलते हैं उसको पूरा स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद दो चीज जरूर करिए, स्वॉट एनालिसिस। उसका स्वॉट एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा मेरी कमी क्या है और अच्छाई क्या है। उन कमियों को निराश मत होइए, उस कमियों को लेना होगा आपको, जो अच्छाई है उसको भी एक साथ लेना होगा, दोनों को मिलकर एक बार सोचना होगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपका इंक्यूबेशन सेंटर है, आप इंक्यूबेशन सेंटर में आप अपने फैकल्टी से मिलिए, अपने आइडियाज को लेके, वो आपको और हेल्प करेंगे। डरिए नहीं कि मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट किए, क्राफ्ट का, टाइल क्राफ्टिंग का, बहुत सारे ऐसे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। मेरे साथ के लोग हैं जो बहुत अच्छा इस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटे से उन्होंने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम लोग के साथ के ही लोग हैं, हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं। डरिए नहीं, उस चीज को, नई आइडिया को लेके आप सामने आइए और हिम्मत के साथ जुट जाइए उसके में। किसी का आइडिया बुरा नहीं होता है, कोई चीज आपकी बुरी नहीं होती है। हाँ, लोग को समझने में फेर हो सकता है। नए आइडिया को लेके आइए। हाँ, मैं उसमें बात करता हूँ लीगल की, आपको उसमें बहुत सारे ऐसे लीगल अड़चने आएंगी, फंड की प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका अगर आइडिया इनोवेटिव है, अगर आपको लगता है नहीं मैं इस पे कर सकता हूं, अगर मैं कर सकता हूं, तो उस आइडिया को आप लेके सामने आइए, और आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, आपको बैंक्स भी सपोर्ट करेंगे। हम लोग, मैं ऐसे डिपार्टमेंट हूं, मैं अपना बताता हूं, मेरा जो डिपार्टमेंट है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस डिपार्टमेंट। मेरा काम क्या है यहाँ पे, हम लोग उन छोटे छोटे लोगों को जिनको बैंक से लोन नहीं मिलते हैं, जो अपना कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो स्टार्टअप करना चाहते हैं बहुत छोटे लेवल से, उनके पास कुछ भी नहीं है, बैंक से उनको प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उनको हेल्प करते हैं। मैं जब फील्ड में निकलता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास ये आइडिया, मैं इसको कैसे करूँ, मेरे पास फंड नहीं है। आप आइए, बैंक से मिलिए। बैंक से मिलने के टाइम आप एक जरूर काम करें, बैंक में आप अपना आइडिया लेके जाएं, उस आइडिया को ऐसे प्रेजेंट करें जिससे सामने वाले को लगे नहीं ये एक्चुअल चीज है। उस पर फ्रेम आउट करें, उसका पूरा फ्रेम करें, उसका एक पूरा फिगर बनाएं,
नहीं क्या चीज है, हम ये प्लान कर रहे हैं, मेरा इससे क्या होगा, तो आगे मेरा क्या ग्रोथ होगा, तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, इससे मेरी कंट्री को क्या बेनिफिट होगा, मेरी क्या इनकम हो सकती है, इससे कितने लोग जुड़ सकते हैं, इस टाइप का पूरा फ्रेम, पूरी स्टडी करके आप उसको आगे बढ़िए। बैंक से आपको सपोर्ट मिलेंगे। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो छोटे छोटे बिजनेस, अपना छोटी छोटी चीजें लेके आते हैं, सर मुझे तो ये स्टार्ट करना है, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे बैंक से सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और आज के टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि गवर्नमेंट इस सब चीजों को बहुत ध्यान दे रही है, गवर्नमेंट इन सब चीजों को सपोर्ट कर रही है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ही बिजनेस लेके आए, बहुत बड़ा आइडिया, आप एक छोटा आइडिया लेके आइए, आप उस पर अडिग रहिए, नहीं मेरा ये आइडिया अच्छा है, मैं इसको कर सकता हूं। फेथ रखिए अपने अंदर, अपने अंदर फेथ रखिए। स्वामी विवेकानंद ने एक चीज कहा है, योर एम इज योर्स, सो डोंट चेंज इट फॉर अदर्स, बट योर कैरेक्टर इज नॉट योर्स, सो चेंज इट फॉर अदर्स। मीन्स आपका एम है, आपका आइडिया है, आप उसको लेके आगे बढ़िए, आप उसको किसी और के लिए चेंज नहीं करिए। आप अपना आइडिया, अपना एम, अपना उद्देश्य, आप अपना उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, आप उसको लेके आगे बढ़िए। हाँ, उसमें चेंजेस करना होगा तो एज पर दी रिक्वायरमेंट हम उसमें चेंज करेंगे अदर्स के लिए, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो एम है, उसको मैं बांध के चलूंगा, मैं उसको आगे लेके चलूंगा। आपको बैंक सपोर्ट करेंगे। लीगल कुछ ऐसी चीजें हैं, लीगल जो आपको दिक्कतें आती हैं, लीगल दिक्कतें आती हैं, जैसे हो सकता है कि कोई ये आपके ऐसे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है, हो सकता है किसी ने उसका कॉपीराइट ले रखा हो, ऐसी चीजें आती हैं, किसी ने कॉपीराइट ले रखा हो सकता है कोई आप नया अपने बिजनेस के लिए ब्रांड सोच रहे हो, तो हो सकता है कि उस ब्रांड के नाम का कोई आदमी हो, या आप उसका लोगो बना रहे हो, उसका कॉपीराइट हो सकता है वो पहले से रजिस्टर्ड हो, या आप उसको रजिस्टर्ड कराने जा रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। इन सब चीजों पे आपको फ्रेम आउट करने की जरूरत है। आप पहले देखिए, मैं जो आइडिया लेके आ रहा हूं, ये मेरा अलग है कि नहीं है, मेरा इनोवेटिव है कि नहीं है। लीगल चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, बहुत इसमें अड़चने नहीं आती हैं। हो सकता है कि आपका ब्रांड का जो आपका लोगो हो, जो आपका ब्रांड नेम हो, वो किसी से मैच करता है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपका आइडिया यूनिक होगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप और मैं या कोई भी इस दुनिया में है, तो आपका और मेरा क्लोन कोई नहीं है, अदर्स कोई नहीं है, हम सिंगल हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो दूसरे को जैसा बनने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप में यूनिक है, हम अपने आप में इनोवेटिव है, तो किसी अदर से तुलना करने की हमको अपने आप की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो आइडिया है वो सबसे यूनिक आइडिया है, मेरा जो आइडिया है वो सबसे अलग आइडिया है। बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको अड़चने आएंगी, लेकिन उनको दूर किया जा सकता है। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपने आइडिया को, अपने एम को लेके आगे बढ़िए। सोचिए बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्राफ्ट का है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो लोग को समझ में नहीं आती हैं। एक टाइम ऐसा था जब आप देखे होंगे प्लेट जो बनती थी, फाइबर प्लेट बनती थी, बीच में पॉल्यूशन को लेकर प्रॉब्लम आई कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, प्लास्टिक की चीजें हैं, तो इसको नहीं करना चाहिए, एनजीटी ने उनको बैन करना शुरू कर दिया। मैंने एक जगह देखा, जिस मशीन से वो पेपर की प्लेटें बनती थी, जो फाइबर की प्लेटें बनती थी जिन पे प्लास्टिक का कोटेड था, केले के पत्ते से वो प्लेटें बनना शुरू हुई। केला आपने सुना होगा ना, बनाना का जो ट्री होता है, उसके पत्ते से और उसके पेड़ के उसे तने से प्लेट बनना शुरू हुई। आज देखिए मार्केट में हाथों हाथ लिया जा रहा है। असम साइड में देखिए, पत्तों से जो पत्ते होते हैं उनसे कितना खूबसूरत डिजाइन का चीजें बनाई जा सकती हैं। ये कहां से लोग के दिमाग में आया, ये कहां से आया? किसी ने कहीं बुक में तो नहीं लिखा है,
कि ये चीज लेके आना है, ये यूनिक चीज आएगी। आप यूनिक है, आपका आइडिया यूनिक है, आप सबसे अलग हैं, आपका चीज भी आपसे अलग होगा। आप अपना एक ही उद्देश्य बना के रखिए, आपको क्या करना है, आपका मेन उद्देश्य क्या है। लीगल चीजों में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो परेशानी होती है, केसेस हो जाते हैं, ये हो जाता है। आप पहले उन सब चीजों को छोड़िए, आप अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को सामने लेके आइए। हाँ, अपने आइडिया को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये आप लोग के भी दिमाग में आ रहा होगा, मेरे दिमाग में आया है अभी जस्ट। हो सकता है आपके जो ग्रुप सर्किल है उसके साथ आप आगे बढ़े, हो सकता है आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, आपने अगर अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है तो तीन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा, 3-4 चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। आप अपना एक प्रिंसिपल बना के चलिए, आपका एक एथिक्स होना चाहिए। मैं अपने एथिक्स के अलग नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपना जो प्रिंसिपल है मैं उसके अलग नहीं जा सकता हूँ, मेरे जो बिजनेस की वैल्यू है उससे मैं अलग नहीं। आप अपने बिजनेस के साथ, आप अपने आइडिया के साथ अपने वैल्यूज, अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल आपको सेट करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक चीज ध्यान में रखिए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका ध्यान रखिएगा वो कहीं आने वाले समय में किसी को हानि नहीं पहुंचाए, वो सपोर्ट करे लोगों को, सपोर्ट करे लोगों को, लोग को उसकी अच्छाइयां मालूम चले, उसकी बुराई कम पता चले। ये बहुत जरूरी है किसी बिजनेस के लिए। इसमें 4 चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें 4 चीजें हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग इसमें 3-4 चीजें बात कर सकते हैं। फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, फ्रॉड करने की कोशिश मत करिएगा, किसी चीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आपका बिजनेस अच्छा है, आपका आइडिया यूनिक है, आप बैंक में गए लोन लेने के लिए, वहां पे अपने आइडिया को एज इट इज प्रेजेंट करिएगा, वहां मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करिएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो नहीं ये लीगल चीजें मैं फंस जाऊंगा, आप वहां मैनिपुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आप एक फ्रॉड की कैटेगरी में आ सकते हैं। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट सस्टेन करना चाहिए, मार्केट में सामने लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करना चाहिए, लोग के दिमागों में जगह बना ले। ऐसा चीज लेके आए जो किसी के दिमाग में बैठ जाए, किसी के मन में बैठ जाए। जैसे मैंने एग्जांपल जुगनू का दिया था ना, मेरे दिमाग में बैठ गया था, मैं जब भी आना जाना होता था मुझे बड़ा सस्ता लगता था, मैं उसको यूज करता था, आराम से मैं आता जाता था। आज के टाइम में कुछ ऐसी लोग प्रोडक्ट्स हैं जो लोग के दिमाग में बैठ गए, नहीं मुझे यही यूज करना है तो यही यूज करना है, मैं अदर्स को मैं टच नहीं करूंगा। ऐसा प्रोडक्ट हमको लेके आना है, ऐसा आइडिया लेके आना है कि लोग आपके मुरीद हो जाए, आपके साथ वो जुड़ जाए। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ जरूर ऐड होनी चाहिए। उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करती है। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके साथ सबसे बड़ा चीज होना चाहिए आपका जो टैलेंट रिक्विजिशन, आपका जो टैलेंट है। आप अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को हायर करिए, आप अपने साथ ऐसे लोगों को साथ रखिए जो टैलेंटेड लोग हो। किसी को अपने साथ ऐसे गैरो के साथ मत रखिए। डोंट डू दिस। एक्वायर बेस्ट टैलेंट इन योर टीम, एक्वायर बेस्ट टैलेंट इन योर टीम। बिना टैलेंट के, पता चला आपका आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको उस चीज को करने का कोई टैलेंट ही नहीं है, आप उसको आगे लेके कैसे बढ़ेंगे? आप अकेले तो किसी चीज को लेके चल नहीं सकते। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर गाड़ी के कम से कम 2 पहिए होते हैं, आगे पीछे चलते हैं, तो कम से कम आपके साथ कोई तो होना चाहिए। या सिर्फ अकेले एक झंडा लेके हम चलते रहेंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
किसी बिजनेस को करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है और टीम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है, अगर आपकी टैलेंटेड टीम है, तो आप किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आपके जो टीम मेंबर है, उनको एंगेज रखिए। जो आपका टैलेंट है उनको यूज करिए। आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आपके साथ जो भी एम्प्लॉइज हैं, आपके कंपनी में जो भी लोग हैं, उनको एंगेज रखिए। उनको नए नए चीजें सोचने के लिए बोलिए। आप उनके जो टैलेंट है उनको यूज करिए। आजकल एक कॉर्पोरेट में बड़ा अच्छा टर्म चलता है, 2 बार पंच 1 बार लंच, अपना काम बनता। 2 बार पंच मतलब सुबह आए, अटेंडेंस लगाया, शाम को निकलना, अटेंडेंस लगाया, दोपहर में लंच का टाइम है, 1 घंटा लंच किया, मेरा टाइम पूरा आ गया, चल दिए, मैं चंगा, एकदम चंगा, कोई टेंशन नहीं है। अरे हो रहा है, होने दो, क्या मतलब है किसी से। कौन सी मेरे बाप की कंपनी है, जिसका पैसा लगा वो सोचे। ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो आपके टीम मेंबर हैं उनको एंगेज रखना बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट engage your employee in work, not in other things, किसी और चीज में इन सबको इन्वॉल्व नहीं रखना है। आपको उनको काम में इन्वॉल्व रखना है। आपकी जो टीम है, आपका जो एम्प्लॉइज है, उनको एंगेज रखना है, ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एज, मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका बिजनेस है, वो मार्केट में सस्टेन कर रहा है, तो उसके साथ साथ कंपटीटर भी आपके बहुत लोग आएंगे, आपको कंपीट भी बहुत करेंगे। आपको हो सकता है आपके प्रोडक्ट का क्लोनिंग आ जाए, क्लोन प्रोडक्ट आ जाए, बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, उनसे आपको बचना होगा। आपके अपने प्रोडक्ट को एज ए कंपटीटर मार्केट में होना चाहिए, आप उसको कंपीट करिए। आपका प्रोडक्ट, आपका आइडिया एक ब्रांड बन सकता है। एक आपका आइडिया आने वाले टाइम में ब्रांड बन सकता है। लोग की जुबान पे वो चीजें चलने लगेंगी, ब्रांड इमेज हो जाएगी, आपका ब्रांड क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट, मतलब ये चीज नहीं भाई, हम ये यूज करते हैं भाई, हम और कोई यूज नहीं करेंगे। मैं आप एक चीज देखे होंगे, बाटा क्या है? एक समय में था बाटा, मैं बाटा का ही जूता पहनता भाई, मैं बाटा का चप्पल बताया, एक अपना इमेज बना के रखा था ब्रांड। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर आपका आइडिया अच्छा नहीं है, तो एक ब्रांड को खराब भी कर सकता है। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है, अगर आपका सर्विस अच्छा नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल नहीं है, लोग की समझ के बाहर है, तो आपकी बनी बनाई ब्रांड को वो खराब कर सकता है, आपकी बनी बनाई ब्रांड को धूमिल कर सकता है। और इन सब चीजों के साथ आप सक्सेस हो सकते हैं, आप सक्सेस होंगे। अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है, आप सक्सेस होंगे। आपका सारा टीम अच्छी है, आपका टैलेंट अच्छे हैं, आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबल है, सारे लोग इंगेज हैं, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में रन करेगा। भगवत गीता में चैप्टर 6 में एक चीज, चैप्टर 6 में कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, जब अर्जुन विचलित हो रहे थे कंपटीशन को देखते हुए, मैं मार्केट की बात करता हूं, कंपटीशन को देखते हुए आपका मन विचलित हो सकता है, आप अपने आइडिया को लेकर विचलित हो सकते हैं। भगवत गीता एक ऐसा किताब नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल किताब नहीं है, ये आज के टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है भगवत गीता। इसमें आज जो चीजें घटित हो रही है वो कई हजार साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में कह दिया था। और उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड अगर हम आज देखते हैं, उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हमारे सामने होती है। भगवत गीता में चैप्टर 6 में आप कभी पढ़िएगा तो एक चीज देखिएगा, भगवान जब
अर्जुन विचलित हो रहे थे कि मैं किसी से युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे साथ के लोग हैं, मेरे गुरु हैं, ये लोग हैं, मैं कैसे कम्पीट करूं इनके साथ, मैं युद्ध कैसे करूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना, अपने मन को विचलित होने से रखना, बचाना, ये बहुत बड़ा कंट्रोल है। आप विचलित नहीं होइए अपने प्रोडक्ट को लेके, आप अपने बिजनेस को लेके विचलित नहीं होइए। आपने अपनी टीम को कंट्रोल कर लिया, आप अपनी टीम जो है, आपका जो टीम मेंबर है उनका मन विचलित हो रहा है, उनको दिमाग को कंट्रोल करिए, उनके दिमाग को अच्छे कामों में लगाइए, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट आप उनके दिमागों को, उनके स्ट्रेस है, जो तनाव है, फैमिली का तनाव हो सकता है, आपका बिजनेस का तनाव हो सकता है, कंपनी का तनाव, उनको थोड़ा सा फ्री टाइम दीजिए और अच्छा सोचेंगे, वो आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंगेजिंग द माइंड, जो मैंने एंगेजमेंट की बात की, अपने टीम मेंबर्स को एंगेज रखने की जो मैंने बात की, वो एंगेज करने की जरूरत है। और एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कॉर्पोरेट के लिए या किसी मनुष्य के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब हम बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडिया हो सकता है हमारे पास, हम सारी लीगल अड़चनें पार करके हम बहुत अच्छा ब्रांड बन के हम मार्केट में एकदम सस्टेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी एथिक्स क्या है, ये कहीं नहीं है। हम सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के टाइम में सब कुछ आदमी को मिल जा रहा है, लेकिन वो अपना आचरण, व्यवहार, एथिक्स वो छूटते चला जा रहा है। बिजनेस में एथिक्स होना बहुत जरूरी है, बिजनेस में एथिक्स होना बहुत जरूरी है। एथिक्स क्या है? एथिक्स इज नोन द डिफरेंस बिटवीन what you have a right to do and what is right to do। मतलब आपके पास क्या राइट चीज है, आपके पास क्या अच्छी चीज है, और आपको क्या अच्छी चीजें करनी चाहिए, इन दोनों के बीच की चीजें एथिक्स है। आपकी मोरल, आपका मोरल जो है, आपका प्रोडक्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपका प्रोडक्ट एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, हम हो सकता है आपको अपना बिजनेस खड़ा करने में 10 पेड़ काटना पड़ा हो, हम 100 पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, समाज के प्रति हमारा जिम्मेदार भरा रवैया होना चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटीग्रिटी है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो आपको किसी भी रूल और रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। इंटीग्रिटी हैज नो नीड ऑफ रूल्स, किसी भी रूल रेगुलेशन के अंदर आप बाउंड नहीं हो सकते। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपकी इंटीग्रिटी अच्छी है, तो आपका प्रोडक्ट अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो आप मार्केट में बहुत अच्छा सस्टेन कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने कैरेक्टर को, आपका जो प्रोडक्ट का कैरेक्टर है, आपका जो कैरेक्टर है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको आपको पकड़ के रखना है। और इस चीज की बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए कि मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मेरा बिजनेस कहाँ जाएगा। आपका सब कुछ अच्छा है, अगर आपका टैलेंट अच्छा है, आपका टीम मेंबर अच्छे हैं, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा है, तो आपको कोई छोड़ नहीं सकता। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूं, जो मैं एक चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक एथिकल फ्रेमवर्क कैसे आप क्रिएट करें। मैं शेयर करना चाह रहा हूं, मैं हो नहीं रहा यहां से, कैसे बताइए।
सर पीपीटी है आपके पास? मेरे पास एक पिक्चर है, वही शो मैं करना चाहता हूँ। सर एक काम करिए, लीव का ऑप्शन के बराबर में एक शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, शेयर कंटेंट। ये आ रहा है आपका शेयर ट्रे करके आ रहा है। हाँ हाँ, तो तब आप जा रहे होंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा शेयर पे, शेयर डेस्कटॉप आप करेंगे तो आपका डेस्कटॉप शेयर हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया है। आप पीपीटी अब आप शो कर सकते हैं, जो भी आपकी इमेज है आप ले आइए डेस्कटॉप पर। यस सर, शो हो रहा है। शो हो रहा है ना? देखिए आप इसको देखिए, शो है ना? बिल्कुल। सबसे पहली चीज, अगर आप बिजनेस को मार्केट में लेके आ रहे हैं तो अपना, पहले मैंने शुरू में ही बात की, अपना प्रिंसिपल एथिक्स को नहीं छोड़ना है, अपना कैरेक्टर को नहीं छोड़ना है। उसका एक फ्रेमवर्क बनाइए। आपके वैल्यूज क्या है, आपके कोर वैल्यूज क्या है, उसको डिफाइन करें। हर कंपनी का एक अपना विजन मिशन और वैल्यू होता है, उसी वैल्यू पे वो ऑर्गेनाइजेशन उसी वैल्यू पे काम करता है। पहला चीज, डिफाइन योर कोर वैल्यू। अपने वैल्यू को आप डिफाइन करिए कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या होना है, और आपके यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट कर रहे हैं या जो भी बिजनेस क्रिएट कर रहा हूं, उसमें मुझे क्या करना है और कैसे करना है और उसकी वैल्यूज क्या है। मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। मेरा वैल्यू है कि मैं सस्ता सामान मार्केट में दूंगा, मैं 1 रुपया इनकम करूंगा, मैं ज्यादा किसी के साथ चीट नहीं करूंगा। आपको वैल्यू एक क्रिएट करना होगा अपनी, आपको रियलाइबिलिटी, आपका एक मार्केट में अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। वो लोग को झलके नहीं, ये मेरे लिए है, ये मेरे मुझसे रिलेटेड चीज है। आप हायरिंग कर रहे हैं, आप इंटीग्रेटेड एथिक्स इनटू योर हायरिंग प्रोसेस। अपने हायरिंग प्रोसेस में भी आप अपना एथिक्स, अपना प्रिंसिपल यूज करिए कि मुझे ऐसे लोग की जरूरत है जो इस कंपनी को आगे लेके जा सकते हैं। वैसे लोग को आप लोग हायर करिए। हायरिंग, वैसे लोग के साथ एक माहौल बनाइए, क्रिएट कल्चर। सबके साथ ओपन, डिसेंट, अपना पूरा कल्चर, एक अलग टाइप का कल्चर आप डिफाइन करते हैं। जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ का एक सबसे अलग ही डिफरेंट कल्चर है। हम लोग एक डिफरेंट कल्चर ही है हमारे बैंक का। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉई है सब लोग हाथ जोड़ के ही नमस्ते करता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून नहीं, नमस्ते हम लोग यूज करते हैं। और ये आज मोदी जी ने बोला था नमस्ते यूज करने के लिए, लेकिन हम लोग शुरू से इस चीज को यूज करते हैं। और अपनी कल्चर को एक एग्जांपल सेट करिए, लीड बाय एग्जांपल। एक एग्जांपल मार्केट में सेट कर दीजिए कि मेरा प्रोडक्ट है, मैं हूं, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टुवर्ड द कस्टमर्स, टुवर्ड द पब्लिक, उनके लिए एक एग्जांपल पूरा सेट कर दीजिए। और ऐसा वैल्यू क्रिएट करिए जो सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। क्राफ्ट वैल्यू एवरीवन कैन ओन। सब लोग अपना सब लोग उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके, वो अपना माने उसे। आप लर्निंग रखिए, लर्निंग हमेशा होना चाहिए आपके। लर्न करते रहिए उन सब चीजों को। और आप एज ए लीडर, आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि मैं किस लेवल तक, मैं कहां तक जा सकता हूं, मेरी क्या लिमिट है। लीड आप ही को करना है। एज ए इनोवेटर, एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको ही आगे बढ़ के लीड करना है। और आपको अपनी एक लिमिट सेट करनी होगी कि मैं इस लिमिट तक जा सकता हूं, बियॉन्ड द स्काई जा सकता हूं। एक चीज हमेशा बोला गया है, आसमान में छेद क्यों नहीं हो सकता? एक पत्थर जरा दिल से तो उछालो। आप एक पत्थर दिल से तो उछालिए, आसमान में जरूर छेद होगा। हवाई जहाज किसी ने बनाया होगा तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, और उनके दिमाग में नहीं ऐसा होता तो आप वो कैसे पहुंचते? जहाज कैसे बनता, बल्ब कैसे बनता? आज हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट में बैठे हुए हैं, ये टीम में हम लोग कर रहे हैं, ये कैसे करते? ये तो आपदा में यही तो अवसर बदला कि हम लोग
बिना मैं गए वहां कुछ खर्च किए, IIMT में मैं गया बिना वहां पहुंचे ही, बिना बिना किसी खर्च के हम लोग आपस में बात करें, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। यही तो इनोवेटिव चीज है, यही तो स्टार्टअप है, यही तो नया इनोवेशन है। एज ए लीडर आपको अपनी लिमिट सेट करनी होगी, एज ए लीडर आपको आगे आना होगा, आपको आपका इंस्टीट्यूट का आपका जो कैरेक्टर है उसको हमेशा याद रखना होगा। नहीं, ये मेरा चीज है, इसमें हम ये चीज कर सकते हैं, ये मेरा चीज है, मैं इसके बियॉन्ड जा रहा हूँ, उसका फीडबैक लेना चाहिए। और उनके साथ साथ कुछ लोगों का एक बोर्ड बना दीजिए, एक दो लोग की टीम मेंबर बना दीजिए। भाई जो फीडबैक आएगा बिना मुझसे डरे, बिना मुझसे छुपाए, आप उसके जो चीज है आप मुझे सजेशन दीजिए, आप उस पर सजेशन दीजिए, आप मुझे बताइए कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें अच्छी और हो सकती हैं। बहुत एथिक्स की अगर हम बात करें तो एथिक्स में गांधी सबसे बड़े एग्जाम्पल है एथिक्स के। अगर एज ए लीडर अगर हम बात करें गांधी जी की, वो अपने आप में इंडिया के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गांधी जी एक बहुत ही बड़े आइडियोलॉजी पर्सन है, आइडियोलॉजिकल पर्सन है, वो स्पिरिचुअल पर्सन है सबके लिए, वो बिजनेस वर्ल्ड के लिए भी है तो एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए भी है। ये गांधी जी ने 7 सीन्स दिए थे जो हम लोग एथिक्स में पढ़े थे, और आज उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। उन्होंने एक चीज कहा था, वेल्थ विदाउट वर्क, वेल्थ विदाउट वर्क। अगर आप धन अर्जन कर रहे हैं बिना मेहनत के तो कोई उसका मतलब नहीं है। आप टीम तैयार कर दे, आपका बिजनेस तैयार हो गया, आपके पास खूब पैसे आने लगे और आप आराम से बैठे हुए हैं, इसके पीछे आपकी कभी मेहनत रही होगी, आपको कंटिन्यू उसके साथ वर्क करना होगा। आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए आपको आगे कंटिन्यू काम करते रहना होगा, ब्रांडिंग करनी होगी, वर्कआउट करना होगा। हाँ, आपने अपना कंपनी सेट कर दिया, आप उस पर एकदम सेटल्ड हैं, आप उस पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आपके पास ज्ञान है, आपका कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में बहुत अच्छा है, आप एकदम लीडर हो गए हैं, लेकिन आपका कैरेक्टर ही नहीं है, आपने जो वैल्यू सेट किया उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, आपने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। जो मैंने लास्ट में स्वामी विवेकानंद का एक कोट मैंने किया था कि your aim is yours, so don't change it for others, but your character is not yours, so change it for others। आपको अपना कैरेक्टर डिसाइड करना होगा सामने वाले को देखते हुए कि मेरा बिजनेस है, सामने में हमारा कैसा काम चल रहा है, हम उसको कैसे वहां तक पहुंचाएं। आपको अपने वैल्यूज, अपने कोर प्रिंसिपल्स को छोड़ना नहीं होगा, अपना जो कैरेक्टर है उसको एक पकड़ के चलना होगा। लास्ट में मैं कुछ चीजें बोलूंगा आपको। स्वामी विवेकानंद ने एक चीज कहा था, उठो, जागो और प्राप्त करो। उठिए, जागिए, प्राप्त करिए। आपके पास आइडिया है, आपके लाइफ में बहुत अड़चने आएंगी, लेकिन उठिए, जागिए और उसको प्राप्त करिए। कौन जानता था स्वामी विवेकानंद को? एक छोटा सा संत था, जब वो शिकागो में गए तो लोग हंसने लगे थे, लेकिन जब वहां उन्होंने स्टार्ट किया, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा, कोई उस समय जानता नहीं था इंडिया को। उनकी एक सोच थी, उनका एक आइडिया था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन इट, ऑन दैट आइडिया।
एक आइडिया लेके आइए, उस आइडिया को अपने लाइफ का, अपने जिंदगी का पार्ट बना लीजिए और उस पे सोचिए, उसको स्वप्न में सोचिए, उसको बनाने के लिए सोचिए और उस पे जीने का काम करिए। लास्ट लाइन में बोलूंगा, आपका जीवन, आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूनिक है, मैंने पहले ही बोला था, हम लोग यूनिक है, हमारे जैसा कोई नहीं है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, इस समय में है। आप इसको, समय को उपयोग करिए। ये टाइम है स्टार्टअप्स के लिए, ये आपदा को अवसर में बदलने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का समय है। और आपके पास आइडिया है, उसको लेके आगे आइए। आपको जहां भी अड़चने आएंगी वो सब दूर होती चली जाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई लीगल, कोई पैसे की कमी कहीं नहीं आएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप आगे बढ़िए, आप अपने बिजनेस आइडियाज को लेके आगे आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवम सर, आपने बहुत अच्छी यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करा कि आप कैसे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एग्जाम्पल दिए जुगनू ऐप के, आपने एग्जाम्पल दिए कि एक केले के पत्ते से भी किस तरीके से बिजनेस करा जा सकता है। तो आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत एथिकल्स के बारे में बताया कि एथिक्स होने बहुत जरूरी हैं। आपके पास बिजनेस कर सकते हैं, आपका ब्रांड हो सकता है, लेकिन जब तक आप में एथिक्स नहीं है देन यू कैन नॉट सक्सेस। तो आपने बहुत सारी बातें बताई। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर आईसी काउंसिल प्रेसिडेंट, आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, President IC Council, Professor Anil Kumar Nigam sir, please come and give the vote of thanks to our dignitaries and faculty members. I would like to invite Professor Anil Kumar Nigam sir. Thank you, Tushar sir. Am I audible? Yes sir, your voice is audible. Okay, thank you, thank you. अभी मैं सुन रहा था मिस्टर शिवम राय जी जो आज के हमारे गेस्ट हैं, डिविजनल मैनेजर बंधन बैंक। हमारा आज का इशू था हाउ टू प्लान फॉर स्टार्टअप एंड लीगल एंड एथिकल स्टेप्स। सो आई थिंक इट वाज वेरी वंडरफुल सेशन। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि मिस्टर शिवम राय आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के एलुमनाई हैं और यहाँ से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टेज में, बहुत अच्छी पोजीशन में आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको बधाई। और ये एक अपने आप में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि दे शुड आल्सो वर्क हार्ड एंड स्ट्राइव फॉर द गुड पोजीशन so that they could also come as a guest in this college when they pass out from this college. तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मुझे लगता है ये जो अनुभूति है, जो फीलिंग है आपको हो रही होगी, उस फीलिंग को सिर्फ आप ही बयां कर सकते हैं, आप ही एक्सप्रेस कर सकते हैं कितना अच्छा आप फील कर रहे होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मैं भी किसी कॉलेज का एलुमनाई रहा हूं। जब मैं वहां बोलता हूं और मैं बात करता हूं तो मेरी जो खुशी होती है, मेरी जो अनुभूति होती है, वो एकदम डिफरेंट होती है। तो शिवम जी, आपने समय निकाला और समय निकालने के बाद आपने बताया स्टार्टअप्स के बारे में कि किस तरीके से स्टार्टअप करें, कौन से उसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए ध्यान रखें, और किस तरीके से एथिक्स को फॉलो करें। आपने समय निकाला बच्चों के साथ अपना, यू imparted your knowledge and experience with our students. So thanks a lot. I'm very grateful for that on behalf of IMT College of Management as well as the Innovation Council of IMT College of Management. तो आपका बहुत बहुत आभार आप आए और बच्चों ने यहाँ पर ध्यान से सुना। मुझे लगता है कि आपके इस सेशन से, इस जानकारी से जो आपने दी है, सर्टेनली दे विल बी बेनिफिटेड, उनको बहुत लाभ होगा और वो अपने जो व्यवहारिक जीवन है, प्रैक्टिकल लाइफ है, और जब वो स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको इससे मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो मेरी पूरी टीम है इनोवेशन काउंसिल की, मिस्टर तुषार गुप्ता जी,
और क्या बोलते हैं डॉक्टर विनीत उप्पल जी, डॉक्टर रामशंकर जी, डॉक्टर अंशुल शर्मा जी, डॉक्टर विभा सिंह जी, डीन बीकॉम, एंड आर द डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज, है ना, डॉक्टर अभिन्न बख्शी भटनागर सर। मैं आई express my gratitude for organizing this program very successfully। और मैं जिसका भी नाम नहीं ले पाया उन पूरी अपनी टेक्निकल टीम को, स्टूडियो के सभी लोगों का मैं जो है यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच। तुषार सर आपका अनम्यूट करना है, आपका म्यूट है, जो माइक है अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके थैंक यू शिवम सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और आशा होगी कि आने वाले टाइम में भी आप हमसे जुड़ें और ऐसे हमें हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करते रहें। तो मैं आईसी काउंसिल के प्रेसिडेंट अनिल कुमार निगम सर से चाहता हूं कि सर हम अब वाइंड अप करें सेशन। ओके सर, फाइन, है ना, अब वाइंड अप करें, हम समाप्त की घोषणा करें। ओके थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स टू ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब सर शिवम सर थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन करा एंड अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।